Oh, thank you, Singalji. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Namaste, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I feel Good happy to afternoon, be. sir. I feel happy to be a part of your program. Good afternoon, sir. बट मुझे दिया गया कि वो मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, ये हमेशा ये तो इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड, बट इसके लिए कोई अधिकारी फ्रॉम आरओ लेने से अच्छा होता है. बट एनीवे आई विल ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन यू इन माय प्रेजेंटेशन. मैंने आपको वो सर्विस बुक का पार्ट बाय पार्ट दिखा दूंगा, देन हाउ इट शुड बी रिटन एंड व्हाट आर द एंट्रीज टू बी मेड, and I will show you the page also. I will try to share my screen now. Okay. Now, what is record management? Record management is knowing what you have, where you have it, and how long you have to keep it. ये तीन मंत्रा है फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट. एक है knowing what you have and where you have it and how long you have to keep it. ये सभी तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट में तो रूल्स के अंदर आ जाता है. Now, record of every event occurring in the official life of a government servant, ये सर्विस बुक में रिकॉर्ड हो जाता है. To be maintained for all permanent or temporary employee, to be opened from the day of entry into the service and to be maintained till ceases to be in service. सबको पता है, person when he enters service book open हो जाता है, when he ceases to be in service, maybe going on suspension or sorry maybe termination or going leaving the job or retiring. Service book also contain entries prior to the entry of the service. These entries are to be recorded very carefully after consulting the original document. ये तो प्रियर सर्विस का कभी कभी जो है ना, ये इट विल हेल्प द पर्टिकुलर पर्सन हु इज एंटरिंग फॉर प्रमोशंस आल्सो, बट यू शुड बी अ बिट केयरफुल व्हेन यू आर एंटरिंग. नाउ लेट अस सी ये सर्विस बुक के बारे में कहां-कहां आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है. नंबर 1, अकाउंट्स कोड. The proposed amended class of service book under article 125 to 134 of accounts code है. You are having the accounts code. I will show you the new one. The new accounts code I will show you. It is in article number 125. It is written service book. Detailed rule of the maintenance is from article 126 to 134. We are going to see it in all the slides, how it should be done in 126 and personal certificate in 127, and in 128 how the qualification declaration are to be written, and in 129 it will be how it should be shown to the employees. It is actually recently added, you know that. 130 how the original service book, how it should be maintained. Well, suppose if it is lost, what should be done. In 131 how the entries of the service book should be verified. In 132 किसी ने ट्रांसफर हो गया तो सर्विस बुक को क्या करना है. 133 should be kept in the safe custody of the principal, and 134 about the leave account. So these are the things very clearly written in your accounts code. Okay. Now it is also mentioned in education code also. The matter related to the service is mentioned in the chapter 7 under article 61 of education code. Most probably most of them will be how it should be maintained and all only. But this is the education code is, even the teachers are in under the education umbrella, then how the service book is to be maintained for them, how the personal file is to be maintained, how the leave account is to be maintained. It is in article 61 of education code. And not only that, suppose if audit team is coming, for them they are having an internal audit manual. In the internal audit manual, in chapter 12, in serial number 79, how the service record is to be maintained by the, record should be verified by the audit team is very clearly mentioned. Let us see what are the points being there. Now this audit manual is sometimes maybe available in your Vidyalaya. You can go and have a copy of it. I'm just showing the particular page where it is being shown. See, service book and
record and service book as per SR 196 and 197. It is being very clearly written. Point number 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to point number 9. How it should be recorded, how declaration is to be obtained, everything is very clearly written there. Now these are the three places where the service book, about the service book, बहुत बढ़िया से वो कोई कैसे करना है, प्रिंसिपल कैसे करना है, then how it should be maintained करके दिया है अकाउंट्स कोड में, एजुकेशन कोड and also in the internal audit manual. Then let us see how the service book, how it started. The service book of KVS employee are maintained as per the instruction laid down by our GO dated 11/3/1976. I have two volumes. Volume 1 has 4 parts, an appendix containing leave account. Let us see volume 1 and volume 2 separately, which will come in volume 1, which will come in volume 2. Let us now concentrate on volume 1. Normally, volume 1 will be containing more entries and volume 2 will contain the proof of the entry. Suppose very simple thing I am telling you. Suppose किसी ने तो इन सर्विस कोर्स के लिए गया था, then इन सर्विस कोर्स उसने अटेंड कर लिया, उसका रिकॉर्ड जो है ना वो लिखवा जाता है, so and so attended the in service course in a venue from this date to this date. वो तो सब वॉल्यूम 1 में लिखा जाता है एंड वो इन सर्विस कोर्स का सर्टिफिकेट का कॉपी अटेस्ट करके वॉल्यूम 2 में जमा हो जाता है. द सेम थिंग ईएल एंट्री इधर होता है, ईएल का एप्लीकेशन फॉर्म, जॉइनिंग रिपोर्ट वॉल्यूम 2 में चले जाता है. वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. वॉल्यूम 1 पार्ट 1 ना, वॉल्यूम 1 कंटेन बायोडेटा एंड फोटोग्राफ. Let us see how many parts are there in volume 1. Part 2 deals with certificates. Part 3 record previous service and foreign service. Part 4 deals with the history and verification of service. In some of them, they will be using the word mutable and immutable. These are the दो शब्द यूज करता है. Mutable का मतलब after some time it can be changed. Immutable का मतलब it cannot be changed. There are certain entries of a particular employee. वो तो ज्वाइन किया था और रिटायर होता है, वो चेंज नहीं होता है. Some of them will change. For example, कोई आदमी आपका when he enter he may be having only BSc B.Ed. Then आने के बाद उसने MSc किया होगा और PhD किया होगा, ये म्यूटेबल है. पर इस क्वालिफिकेशन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं. But there are certain things which cannot be changed from the day number 1 to the last day. Okay, now part 1, let us see very quickly that part 1 of the volume 1. We have just seen in the previous, this one, it contained 4 parts. Let us see part by part. Part 1, entries in the part will be made at the time of first appointment and attested by the head of the officer. Actually, ये page number 1 बोला जाता है. Addition and alteration will also be similarly attested. मैं आपको बताया था ना, addition and alteration का मतलब education qualification, there is one column where that can be added. Then signature of the left thumb impression to be obtained and photograph should be renewed after every 10 years. ये बहुत important है. Let us see the page, that part 1 page. मैंने सबका part को scanned and I am putting it before you. ये बायोडेटा है part 1, ऊपर part 1 लिखा है. ये फोटोग्राफ पेस्ट करना है. ये याद रख लीजिए, 10 साल में एक बार दूसरा फोटोग्राफ साथ करते जाएगा. हस्बैंड नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम. आपको पता है हस्बैंड नेम कभी कभी जो है ना वो शादी नहीं हुआ तो नहीं आएगा, शादी होने के बाद वो आ जाता है. Therefore, this husband name is mutable. Nationality, then a member of the scheduled caste, scheduled tribe, these are all cannot be changed, all of you know that. And professional qualification, technical qualification, and here very clearly written, photograph should be renewed after 10 years of service of government servant. Okay, now these are all, some of them cannot change. आपको पता है, personal home address, something to be entered the day the particular officer is entering the service. Let us go to part 2. This part 2 is having 10 certificates. We will see one after the other. First 7 certificates will be recorded at the time of initial appointment and the remaining 3 will be recorded at the appropriate stages. पहले तो 7 तुरंत हो जाता है, remaining 3 है वो तो जाते जाते. फॉर एग्जाम्पल GPF का नंबर थोड़ा देरी से आएगा, वो आने के बाद वो एंट्री हो जाएगा. The blank space may be utilized for recording other certificate. The declaration and related notices to be put in volume 2. यही मैंने बताया था. कोई भी आदमी आता है वो डिक्लेरेशन देता है, नॉमिनेशन देता है, GPF DCR का नॉमिनेशन वगैरह फॉर्म में देता है. इसमें एंट्री होगा बट उसका डिक्लेरेशन का सिग्नेचर, वो कॉपी ऑफ दैट विल गो इन वॉल्यूम 2. Okay, let us see it
very closely now. देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ये तुरंत होना है, कैरेक्टर तुरंत होना है, अलायंस ओथ, मैरिटल स्टेटस, डिक्लेरेशन ऑफ द होम टाउन साथ तक तुरंत होना है, वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री ये तुरंत होना है, जीपीएफ नंबर will be entered only if you get it. Then ये फैमिली पर्टिकुलर ग्रेजुएटी पेंशन वगैरह थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं. ओके, आई एम क्लोजिंग इट. लेट अस गो टू पार्ट 3A. पार्ट 3 में दो पार्ट है, 3A and 3B. व्हाट इज 3A? इट इज पोस्टेड ओनली व्हेन सर्विस बुक अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पास्ट सर्विस. मान लीजिए उसने इधर आने के बाद कहीं किसी से काम किया है, उसका पास्ट सर्विस का रिकॉर्ड अवेलेबल होने से एंट्री होगा. Entries made in the column should be attested by the head of the office or any other officer duly authorized. किसी उसमें ऐसे लिख दिया तो काम नहीं बनता है. It should be attested by the head of the office. The purpose of which the previous service has been accepted as qualifying service should be specified. For example, leave, pay, pension. Some of them will maybe coming after doing service in other government organization. Okay, I am just showing you the 3A. There you see it is telling very clearly that कौन से दिन तक कौन से पोस्ट में था, वो ये पर्पस फॉर विच इट क्वालिफाइज, ये क्वालिफिकेशन क्यों दिया गया है, देन डेसिग्नेटेड सर्टिफिकेटिंग ऑफिसर का इधर सिग्नेचर आ जाएगा. ओके, सम टाइम व्हाट विल हैपन, कुछ टीचर्स जो है ना फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, दैट विल कम इन पार्ट 3B. फॉर एग्जांपल दे गो टू केवी मॉस्को, इवन ऑफिस पीपल आल्सो गोइंग टू केवी मॉस्को, केवी काठमांडू और केवी टेहरान, देन दैट एंट्री विल कम इन पार्ट 3B. Column number 1, 3 and 4 will be posted after the receipt of intimation from the foreign employer. Column 2 will be filled after reversion of the government servant from foreign service. Will be brief. Okay, we will see that it is also the same thing. 3A, 3B वो नीचे होता है, कब से कब तक वो फॉरेन में काम किया, पोस्ट हेल्ड, लीव एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल, अमाउंट ऑफ लीव एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली रिसीव्ड. ये पूरा एंट्री हो जाएगा, ये अटेस्ट भी हो जाएगा. Okay, then let us go to part 4. ये part 4 बहुत important है, because ये particular employee उसका information जो है ना वो part 1, part 2 और part 3 में आ गया. अभी ये part 4 में वो continue करता है ना सर्विस में, पहला दिन से तो ट्रांसफर होता है, वो then इसका प्रमोशन होता है, सब कुछ जो है part 4 में रिफ्लेक्ट हो जाता है. Entries in this part will be made at the time of initial appointment and thereafter on the events. What are the events? Event number 1, चेंज इन पोस्ट, ऑफिस, स्टेशन, स्केल ऑफ पे, सब कुछ इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा. देन अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिवर्शन, डेपुटेशन, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, लीव, पेंशन, ये सब कुछ पार्ट 4 में आ जाएगा. ये पार्ट 4 में इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर द हाउ दैट पर्टिकुलर स्टाफ का ये डिपार्टमेंट में उसका जर्नी कैसे रहा. मान लीजिए कोई आदमी पीआरटी से ज्वाइन करके वो प्रिंसिपल तक जा सकता है, ये पार्ट 4 में वो अपने आप दिखाई देता है. देखिए पार्ट 4 का मैंने एक पार्ट आपको दिखा देता हूँ. सीरियल नंबर 1 देखिए, फ्रॉम टू, कब से कब तक काम किया, ऑफिस कौन से ऑफिस में काम किया, वेदर इज सब्सटैंटिव और ऑफिशिएटिंग, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, नाउ लेट अस गो टू द अदर पार्ट, दैट इज वो आपको मैंने उसमें आपको 5 तक 6 तक दिखाया. इवेंट अफेक्टिंग, देन सिग्नेचर, डेसिग्नेशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, वेरीफाइंग ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड देन रिमार्क्स. ओके, रिमार्क्स में क्या क्या आएगा, यू नो दैट वेदर इट विल बी either it is appointment or promotion or reversion, like that it will come there. Okay, now let us see one more thing, that guidelines. The guidelines are very very important because this, as I told you earlier, ये तो पार्ट 4 आपको तो ये कैसे उसका पूरा जर्नी रहा, ये कोई भी पोस्ट में एंटर किया, वो रिटायरमेंट तक उसका जर्नी कहाँ से कहाँ गया, उसने उसको क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, ये पूरा पार्ट 4 में आ जाता है. Therefore, इसमें रेड इंक में द फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी रिटन. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जो है ना वो ब्लू इंक में लिख करके फिर रेड में तो अंडरलाइन करवा देते हैं. प्लीज ट्राई टू अवॉइड. वेरी क्लियरली आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि द फॉलोइंग एंट्रीज इन पार्ट 4 आप रेडिंग में ही लिखना है. व्हाट आर दे? नंबर 1, कंफर्मेशन. आपको पता है कब कंफर्मेशन होगा, वो आरओ से कंफर्मेशन आ जाता है 2 साल के बाद. देन सस्पेंशन, ये भी आपको मालूम है, इसके बारे में सोचना नहीं है, फिर भी मान लीजिए किसी का सस्पेंशन हो गया, वो पार्ट 4 में रेडिंग में लिखना है. देन रिडक्शन इन रैंक, मान लीजिए कोई दे हैव यूज्ड दैट रूल नंबर 14 और 16 यूज करके रैंक को रिडक्शन कर दिया, देन इट विल कम देयर. देन विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, यू नो दैट ये मेजर पनिशमेंट
माइनर पनिशमेंट में इंक्रीमेंट को मिनिमम 3 साल रोक सकते हैं विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और विदाउट इफेक्ट। वो हो गया तो उसको रेडिंग में लिखना है। देन रिकवरी ऑफ लॉस, ये आपका आई थिंक आज भी तो कंडमनेशन के समय पर भी वो बताया था, कोई भी आदमी किसी ने कर दिया तो उसे हम लोग रिकवरी करते हैं लॉस। ओके, लीव विदाउट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सर्विस ब्रेक, मान लीजिए कोई उसका सर्विस ब्रेक हो गया। देन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, ये भी रेडिंग में लिखना है। एंड पे फिक्सेशन, ये पे फिक्सेशन आपको मालूम है कब कब होता है, प्रमोशन का समय पर हो सकता है और पे कमीशन का समय पर ये पे फिक्सेशन होता है। Therefore all these entries आप रेडिंग में ही लिखना है। Okay, what are the other guidelines? Entry in column 3 will be posted at the time of making the next entry. I will show you the column 3 now. Column 4, in respect of the second and subsequent entries be filled only if there is a change in the post. Then column number 5 and 6 will be show different components of the pay separately. अभी देखिए column 3 will be posted at the time of making the next entry. देखिए ये वाला column 3 को बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये from 2 वाला है ना, ये from लिख करके 2 कब लिखना है, ये clearly लिखा है कि it should be posted at the time of making the next entry. अपने दूसरा एंट्री नीचे आने के समय पर ही column 3 को फिल करके उसका कंटिन्यू करना है column number 2 में फिर एक बार। Then column number 4 in respect of second and subsequent entries be filled, there is a change in the post. देखिए column number 4 फिर एक बार दिखा देता हूं आपको, post, scale of pay and office. ये कब लिखना है, क्या बोल रहे हैं वो, it should be written only if there is a change in the post, scale of pay or office. Column number 5 of 6 will show different components. देखिए 5 and 6 is whether it is a substantive pay or officiating pay. That's all. ये 2 and 3 में बहुत ध्यान से देखना है, ये 3 में क्या लिखते हैं वो 2 में फिर आना है, ऐसे आना है। Then only it means that there is no break in service। और आपको मालूम है किसी का भी ब्रेक इन सर्विस होता है वो लाल में रिमार्क्स कॉलम में अपने आप आ जाएगा। वेल नाउ अगेन पार्ट 4 का बहुत गाइडलाइंस है। कॉलम नंबर 7 कंसर्निंग द एंट्री विल बी पोस्टेड द टाइम ऑफ मेकिंग द नेक्स्ट एंट्री, लीव द नेचर ऑफ द लीव विल बी इंडिकेटेड। कॉलम 8 में अटेस्टिंग ऑफिसर विल एंश्योर दैट देयर इज नो अनएक्सप्लेन्ड गैप बिटवीन द डेट शोन इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3। मैंने यही बोला था आपको, कॉलम 2 और 3 का बीच में डेट का गैप नहीं होना चाहिए। 3 में क्या लिखता है वो 2 में फिर अगेन शुरू होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मैंने अभी तो इधर एक जगह पर तो काम किया था, उस दिन से दूसरा दिन दूसरा जगह गया तो मुझे भी कंटिन्यूअस। मैंने तो अभी आपका 10th मार्च में एक जगह पर 3 में लिख दिया, 10th मार्च दूसरा कॉलम 2 में नेक्स्ट रो में लिखना चाहिए। ओके, नाउ कॉलम नंबर 7 से इवेंट अफेक्टिंग कॉलम नंबर 4 to 6। ये इवेंट अफेक्टिंग का मतलब whether he went on long leave or EOL and all. That is why it is very clearly written, will be posted at the time of making the next entry. In case of leave, the nature of the leave will be indicated. Okay, well, this is very important. You should be very careful with this 4. Again, I am just showing you that 4 once again. Well, then let us go to guidelines once again. At the beginning of the year or at the time of transfer, entries in column 2 to 7 will be verified with reference to the relevant documents in terms of GFR 81. मैं बोला था 2 and 7 को ध्यान से देखते हैं। If for unavoidable reason it is not possible to show the service book to the employee, an abstract in prescribed form will be communicated. Such acknowledgement will be kept in volume 2 of the service book. ठीक है, ये part 4 थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि part 4 as I told you earlier, it tells you the journey of the particular staff from the day he enter till he ceases to be in service. Well, okay, now let us go for other service related entries. ये CPF है, already है, कुछ लोग है, अभी maximum लोग कम होते जा रहे हैं। Then family history should be written, service verification लिखना है, and leave travel concession. मैं very quickly I will show you those pages. CPF का पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। This is Form B, Contributory Provident Fund, name and address of the nominee, रिलेशनशिप, एज ऑफ द नॉमिनी, अमाउंट ऑफ शेयर। ये आपको मालूम है ये अमाउंट ऑफ शेयर का कैसे करना है, इट शुड बी हाउ टू कवर इट। ओके, सो दैट टू कवर द होल अमाउंट। ओके, कॉलम 4 शैल बी फिल्ड इन सो एज टू कवर द होल अमाउंट एट क्रेडिट। ये आपको मालूम है, इट शुड बी टोटल 100% होना है। वेरी सिंपल। लेट अस गो टू फैमिली हिस्ट्री। दिस इज एक्चुअली लिटिल बिट म्यूटेबल। नेम ऑफ द मेंबर, मेल फीमेल, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क्स। ये भी रिकॉर्ड मिलने से इसको एंट्री करके दैट रिकॉर्ड विल बी केप्ट इन वॉल्यूम 2। देन अगेन सर्विस वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आजकल जो है ना एक सर्विस वेरिफिकेशन के लिए एक सील भी बन गया है, बट एक्चुअली देयर इज ए पेज फॉर इट, डेटा वेरिफिकेशन फ्रॉम टू सोर्स ऑफ डिडक्शन एंड इनिशियल ऑफ द प्रिंसिपल। देन लीव ट्रैवल कंसेशन, ये तो आई थिंक सेपरेट सेशन वाज ऑलरेडी कंडक्टेड फॉर यू। फुल नेम, डेसिग्नेशन, उसका होम टाउन, सिग्नेचर एंड हेडक्वार्टर, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कौन से साल में अवेल किया, लीव ट्रैवल कंसेशन अवेल्ड, डेट, कौन से ब्लॉक ईयर में गया, देन रिमार्क्स। एक्चुअली इट इज हैविंग 2 पेजेस। फर्स्ट पेज में नाम वगैरह आएगा, इन द सेकंड पेज दैट इज 45, पेज नंबर 45 में कौन से साल में उसने लिया है कंसेशन अवेल्ड फ्रॉम, कौन से साल से, ब्लॉक ईयर में कौन से ब्लॉक ईयर में लिया। Okay, now let us go to the leave account. Actually somebody will call it as an annexure also. Leave account CS36 बोलते हैं, and the same should be consulted any member of the staff is sanctioned leave. The leave account should be posted in accordance with the leave rule. आपको मालूम है leave rule, उसके बारे में एक सेशन भी लिया होगा। When an employee return from leave, the leave account should be completed and the entries should be attested by the principal. Very, very important. I think no need to show you, all of you may be knowing it. Okay, I will try to rotate it and then show you. Oh, sorry. Okay, I think these are the entries. You know that earned leave will come in the first one and half pay leave will be coming in the second one. It is coming under rule number 15. It is called form number 2. Leave taken, then the length of the service, and this is HPL का है, ये earned leave का है, and it tells you that how much EL is credited and how many of them has been to be deducted, like that everything will be there. Okay, now in the other part of it, that is उसका continuation में क्या होगा, leave taken, commuted leave भी होगा, leave not due limited to 360 days, वो भी on medical certificate, ये भी होगा, then total number of days, total half pay, then balance, then other kinds of leave taken, everything will come under this leave taken page. Okay, then let us go to the entry of the child care leave. ये तो पुराना वाला में नहीं था, therefore we have to attach a annexure for that. The leave account for child care leave shall be maintained in the prescribed performa and shall be kept along with the service book of the government servant concerned. ये देखिए, this is the form given by the government. It was issued in 29 September 2008. So many amendments came after that. You know that कितना बार ले सकते हैं, at a time कितना ले सकते हैं. There are so many amendments came. This is the performa. You have to take this performa. It should be pasted in the service book and also one copy should be kept in the volume number 2. Period of the child care leave from to, balance of child care leave from balance to date. This balance to be kept in mind because आप सबको मालूम है 365 days के ऊपर हो गया तो वो उसका सैलरी में क्या अंतर होगा, all of you know that. Therefore बैलेंस है ना, ये ध्यान से लिखना चाहिए, so that you have to check whether 365 का नीचे जा रहा है कि नहीं. Okay, and that was the performa which is being given by Government of India. That should be taken. वो थोड़ा सा थोड़ा उसका you can see that columns बहुत छोटा छोटा दिख रहा है आपको. You can type it once again and you can keep it ready for you. ये थोड़ा कॉलम जो है ना, ये you can make it एक्सेल में बनाकर आपने पेस्ट कर सकते हैं. स्पेशली आपका फीमेल कितना लोग है उसका पूरा सर्विस बुक में पेस्ट करके रखना चाहिए. ओके, देन वॉल्यूम 2, आई वाज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम 1 नाउ, वेयर द एंट्रीज विल बी मेड बाय यू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन विच पार्ट नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसका डॉक्यूमेंट्स, कितना डॉक्यूमेंट उसका सपोर्टिव होता है वो तो वॉल्यूम 2 में हो जाता है. वो नीचे से नंबर बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 करके बढ़ते जाएगा. एंड रिलैक्सेशन ऑफ एज मान लीजिए, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इसका प्रूफ डॉक्यूमेंट इसमें आएगा. रिपोर्ट रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड ओरिजिनल, ये ओरिजिनल जो आपको पता है ये पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं. ये वो कौन से गांव में था, वो गांव से दैट रेस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर विल गिव यू, उसका ओरिजिनल इसमें एंट्री उधर हो जाएगा इन पेज नंबर 2 ऑफ द सर्विस बुक, बट उसका डॉक्यूमेंट वॉल्यूम 2 में it will be attached. Medical certificate fitness, you know that the day number 1 में ये आकर देना पड़ता है.
डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस दे हैव टू गिव, एक्सेप्टेंस ऑफ होम टाउन डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है दे कैन चेंज द होम टाउन only once in their whole service, but that can be done only by the commissioner. And oath, that is actually there is a performa for oath, ये oath taken में वो sign करके आपको वो फॉर्म दे देगा, oath ले लिया करके that page number 2 में एंट्री होगा, but oath का proof will be in the volume number 2. A nomination for PF, ये आपको पता है there is a performa for that, they can nominate their wife, their son, it depends on the situation. Then details of the family, नॉमिनेशन फॉर फैमिली पेंशन एंड ग्रेजुटी, इसका कितना डॉक्यूमेंट्स है ये वॉल्यूम 2 में आ जाएगा, ये अभी तक बंद नहीं हुआ है. चेंज इन होम टाउन मैं ऑलरेडी बताया था आपको, देयर इज अ परफॉर्मा फॉर दैट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा. ये तो आजकल उन लोगों को एप्लीकेशन के साथ साथ व्हेन दे आर कमिंग फॉर ज्वाइनिंग ये अपने आप आ जाता है. कंडोनेशन ऑफ ब्रेक इन सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट द competent authorities having the power to condone the break in service, ये हो गया तो उसका document should be kept in volume 2. The collateral evidence in respect of past service, बोला था मैंने past service will be entered in part number 3A of the service book, there इसका evidence should be kept in the volume 2. Then change in name, आपको पता है name change करना के लिए कुछ there is certain rules and regulations. Order regarding change of date of birth, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन इन द सर्विस मैटर. ओके डन. अभी हम लोग जो है ये वॉल्यूम 1 क्या होता है, वॉल्यूम 2 क्या होता है देख लिया. नाउ सपोज ये वॉल्यूम 1 एंड 2 दोनों जो है ना ये ऑफिस में इट विल बी केप्ट इन ए सेफ कस्टडी, बट नाउ दिस कॉपी ऑफ द सर्विस बुक टू एम्प्लॉइज, ये थोड़ा एक एकदम नया चीज है, ये पहले नहीं था. अभी देन नाउ दे थॉट दैट व्हाई टू कीप एवरीबॉडी इन डार्क, और अभी सब कुछ चेंज हो गया, आपको भी मालूम है. Previously it was called ACR, Annual Confidential Report, उसका नाम ही बदल गया, अपार हो गया APAR, उसका कॉपी भी आपको मिल रहा है. वैसा तो आपका सर्विस बुक का कॉपी मिलना भी अच्छा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टाफ शुड नो दैट उसका एंट्रीज क्या हो गया है, वो एंट्री से क्या परिवर्तन होने वाला है, ये प्रभाव क्या पड़ने वाला है. दैट इज व्हाई नॉर्मली व्हेन वी आर टेकिंग एनी इन सर्विस कोर्स, हम लोग टीचर्स को भी सर्विस बुक के बारे में बताते हैं. यानी आप लोगों को बताते हैं उसको कैसे मेंटेन करना है, उन लोगों को बताते हैं उन लोग कैसे मेंटेन कर रहा है, तो दे आल्सो शुड नो, देन ओनली उन लोग आपको आकर बता सकते हैं सर मेरा एंट्री ऐसे हो गया है करके, देन दे शुड नो. वी डोंट वांट एवरीबॉडी डोंट वांट टू पुट एनीबॉडी इन डार्क. द सर्विस बुक shall be maintained in duplicate. First copy shall be retained and maintained by the head of the office, maybe you can call it as the original. The second copy should be given to the Sangathan employee for the safe custody. अभी ये when that original letter came, it was written there, existing employee के लिए 6 महीना तक दे सकते हैं, न्यू अपॉइंट के लिए 1 महीना, अपॉइंटमेंट आया है ना तुरंत उसको देना है. Okay, well, now in January every year the Sangathan employee should hand over his copy to the service book to the office for updation. ये आपका थोड़ा ये काम है, मान लीजिए उन लोग एवरी जनवरी में सबका कॉपी आपने दिया है वो आपके पास वापस आ जाएगा. आपने उस साल में मान लीजिए अभी 2021 का जनवरी में आपका हाथ में उन लोग दे रहे हैं, 2020 में जनवरी टू दिसंबर उन लोगों का क्या क्या एंट्रीज हुआ, मान लीजिए इन सर्विस कोर्स का एंट्री हुआ होगा, LTC का एंट्री, और देयर में भी सम काइंड ऑफ EL लिया होगा, सब कुछ should have to update and return it to the Sangathan employee within 30 days of the receipt. मतलब है जनवरी में दिया, फरवरी में वापस देना है. And in case the Sangathan employee copy is lost, it shall be replaced on payment of ₹500. ये पहले तो 500 फिक्स किया था, अभी मुझे जानकारी नहीं है whether this 500 has been increased, but 500 थोड़ा अच्छा अमाउंट है. The original service book maintained in the Vidyalaya should not be handed over to an employee in the event of his resignation or discharge. If the employee wants a certified copy of his service book, again it may be supplied on payment of a copying fee of 500. The amount should be credited to miscellaneous income. मान लीजिए ओरिजिनल सर्विस बुक शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू द एम्प्लॉई, सपोज वो रिजाइन करके गए हैं और डिस्चार्ज करके गए. वेल नाउ अभी हम लोग हमारा सर्विस बुक के बारे में देखा है, एंड आपने ये सर्विस बुक देखने के भी आप सम ऑफ यू मे बी मेंटेनिंग. अभी सर्विस बुक को हम लोग देखते हैं, वो व्हेनेवर एंट्री करने के समय पर थोड़ा आपको भी थोड़ा सा कठिन हुआ होगा, ये कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये कॉलम में मुझे लिख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा यू विल बी हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दैट. Therefore, Government of India has given a Ministry of Personnel and Public Grievances has introduced a revised form of a service book.
ये रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ ए सर्विस बुक मैंने आपको दिखा देता हूं. आई डोंट नो इवन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो द संगठन मे टेक इट एज ए थिंग दैट ये सभी नया लोग आ रहे हैं, इन लोगों को ये नया सर्विस बुक दो, क्योंकि इतना सुंदर है वो सर्विस बुक, आपने देखने वाले हैं. मैं आपको दिखा देता हूं. बट इसमें एक एक्स्ट्रा डिटेल क्या है, मान लीजिए कोई भी इंटरनल ऑडिट कमेंट किसी के टीचर के ऊपर दिया है. अभी तक हमारा सर्विस बुक में इंटरनल ऑडिट कमेंट लिखने का कोई जगह नहीं है. ये रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ सर्विस बुक में एक एक्स्ट्रा डिटेल है, इंटरनल ऑडिट कमेंट इज इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल इन लोग का पे फिक्सेशन एक्स्ट्रा हो गया, उन लोग का पे फिक्सेशन वापस किया, दिस टाइप ऑफ ऑडिट कमेंट्स विल बी रिटन देयर. क्यों लिखता है वो, देयर इज ए काइंड ऑफ प्रूफ दैट इसलिए ऑडिट ने बोला, इसलिए इसको बेस्ड ऑन द ऑडिट कमेंट इट हैज बीन डन. ओके, नाउ आई विल शो यू, इट इज हाईली इंटरेस्टिंग. आपने देखने से भी आपको पता चलेगा वो कितना सुंदर है. देखिए ये 11 मार्च 2008 में, अभी आई थिंक 12 साल के ऊपर हो गया, ठीक है. ये देखिए, ये आई विल शो यू, इट इज हैविंग 122 पेज. देखिए इट हैविंग द कंटेंट्स, बायोडेटा इम्यूटेबल. मैंने इसके बारे में आपको बताया था. इम्यूटेबल का मतलब यू कैन नॉट चेंज आफ्टर ए एंट्री, एंट्रीज कैन नॉट बी चेंज टिल द एंड ऑफ द सर्विस. म्यूटेबल का मतलब द एंट्रीज कैन बी चेंज, ठीक है. अभी देखिए ये पूरा देखिए पार्ट अनेक्शर पार्ट 8 तक है, अपेंडिक्स है, अनेक्शर है, ठीक है. अभी देखिए आपको फर्स्ट वाला में आपने देखा होगा फोटोग्राफ पेस्ट करने के लिए एक जगह है. मान लीजिए 10 साल के बाद आपने दूसरा फोटोग्राफ पेस्ट करने के लिए उधर जगह नहीं है, उसका नजदीक पेस्ट करना पड़ेगा. तीसरा के लिए उसका नजदीक पेस्ट करना पड़ेगा, और 14 के लिए क्या करेगा. यही प्रॉब्लम है. देखिए इसमें क्या किया, इसने 6 फोटोग्राफ पेस्ट करने के लिए he has given the space, and you see it is in a bilingual name in full. देखिए इतना जगह छोड़ा है. नाउ a person who is doing the work, इसको बहुत आनंद आएगा वो लिखने में. देखिए ये डेट ऑफ बर्थ भी देखो, डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए भी आपको कैसे दिया है कि वो इन द बॉक्स यू कैन राइट इट वेरी क्लियरली, 08/04/1978, like that you can write very clearly. देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, you see here at the time of first appointment and subsequent acquired. हमारा इसमें तो थोड़ा सा इतना नहीं है, but it is very clearly written that एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट में क्या था, साथ साथ उसने क्या क्या लिया, ए बी सी डी करके, ठीक है. एंड इसी देखिए अटेस्टेशन इतना बढ़िया दिया गया है. देखो देयर आर लॉट ऑफ स्पेस गिवन, आपको तो आराम से कर सकते हैं. देखिए नाउ हियर वेरी क्लियरली रिटन, दीस आर ऑल म्यूटेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल? इट कैन बी चेंज्ड. फैमिली पर्टिकुलर कैन बी चेंज्ड. जीपीएफ अकाउंट नंबर, नॉमिनेशन आपको मालूम है, शादी के पहले वो पापा मम्मी का नाम दिया होगा, शादी के बाद तो बीवी का नाम देना ही पड़ेगा. therefore nomination to GPF चेंज होता है, therefore it is mutable. The nomination of gratuity, the nominee of central government employee, this one nomination of leave encashment, ये आपको मालूम है. these are all mutable things. देखिए प्रीवियस क्वालिफाइंग सर्विस द सेम थिंग. आपने उधर 3A 3B देखते गए ना, ये सब कुछ इसमें भी है. देखिए उधर भी 3A था, इधर भी 3A है, उधर 3B था फॉरेन सर्विस, इधर भी 3B है. ओके, now you can come down very quickly. I will try to close it. You can go down. Okay, part 4 देखो, from 2 the same thing. I think all of you know that 2 3 में कैसे लिखना है. then part 4 इतना दिया है. देखो हमारा part 4 इतना पेज बिल्कुल नहीं है. देखिए इतना part 4 चलते जा रहा है as if a person is working for more than 50 years. okay, record of verification service इतना बढ़िया दिया है. देखो then लीव अकाउंट also very clearly given. लीव अकाउंट का पार्ट 4 का बहुत, पार्ट 6 बहुत दिया है. then लीव ट्रैवल कंसेशन देखिए, it has been given in the form of very interesting table, the way the person is applying, relationship, age वगैरह जो एकदम डिटेल है इसमें. then ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में है. then इंटरनल ऑडिट का कमेंट्स, ये आपको दिखाना चाहता था मैं. देखिए डेटा वेरिफिकेशन, कमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिट, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिट ऑफिसर, डिटेल ऑफ द कंप्लायंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिट बाय द हेड ऑफ द ऑफिस. आपको पता है ना, ये हो गया तो वो ऑडिट का वो ऑब्जेक्शन कुछ भी है तो ड्रॉप हो जाएगा. therefore this comment of the internal audit is a main part being added here. okay, here देखिए अपेंडिक्स में पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन,
ये आपको मालूम है, ये पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए ये एक्चुअली हम लोग करते हो, ये पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इसमें अपने आप कर सकते हो. दैट इज ओनली अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू कैन मेक. ओके, हियर बाय एक्नॉलेज द अबव सर्विस. ओके, नाउ नॉट ओनली दैट, इसमें आपका 2 पेज का इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है. सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज आल्सो गिवन. 3A को कैसे करना, देखिए पार्ट 3B को कैसे करना, पार्ट 4 को कैसे करना. Therefore, I don't know whether our Sangathan will take it or any central government organization is making use of it. But this particular service book का नया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. That is actually being made only to make your entries easy. That's all, very simple. आपका एंट्रीज आपने तो करना चाहते हैं, ये थोड़ा विस्तार से आपने कर सकता है. देखिए, this is the first page, service book of so and so. Therefore, you can write it very clearly, neat and clean. No confusion will be there because this is going to come for the service. For example, मैं 30 years के साथ तो 40 साल भी तो काम करने वाला भी हमारा संगठन में है. At the age of 20 they enter and at the age of 60 they are retiring. उन लोगों का थोड़ा मेंटेन करने के समय पर ना तो बढ़िया से मेंटेन करना है. So this is actually a new one I have shown you. Okay, thank you friends. I think I can close now. अभी देखिए एक कहावत है एंट्री फोर्ड का, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. anyone who keep learning stays young. आपने तो लर्न करते जा रहा है, ये आप हमेशा यंग रखेगा. संगठन आपको हमेशा यंग रखना चाहते हैं, इसलिए आपको हमेशा ट्रेनिंग देते जा रहे हैं. Therefore, thank you friends. Thank you, sir. Thank you, sir.